Hello and welcome to Nirmal Bang, ladies and gentlemen. I'm Hila Daria. We have with us Kunal Shah, Head of Commodities Research, joining in. Kunal, welcome to the show. Kunal, the dollar has drifted higher. One is the markets are awaiting what comes out with regards to where the job reports, the employment data is concerned. What's the sense that you pick up? Because with that, I mean, clearly the numbers that could make the case for faster US policy tightening at a time when action in Europe and Japan remains pretty distant. Okay. So first of all, good evening, everyone. Very big day today. Before the data, I would not recommend to enter into any trade, but today I'm sharing the screen. Can you all see the screen? Viral, can you see the screen? Yes. Yeah. So if you look here, today is the non-farm payrolls number. So if you look at this 22 number column, change in non-farm payrolls, prior was 850. Okay. Expected is 890. So any number here printed above 1000, just please note down everyone. Any number here more than 1000, gold, silver, all commodities, especially gold, silver will correct. So any number, you see abrupt rise in payrolls. The number below 850 or number somewhere hovering at 700 or 650, that will cause sharp upside in gold. So any number above 1000 will cause sharp downside. Any number below 750 will cause sharp upside in gold. Okay. एक 1 मिनट सुरेश भाई वेबिनार में 5 मिनट में करता हूँ. So that is number one detail. Second is unemployment rate. Okay, if you see a unemployment rate which was prior 5.9%, expected is 5.7%. So last 1 month back when we had payrolls data, you see this 25 number row. So unemployment was going down and payrolls have gone down. So both had come down. So that was, so if unemployment, is below 5.5%, so at that time, even if the payroll number is bullish for gold, इसका impact market में कम आएगा. So हमको दो चीज देखना है आज के डेटा में. तीसरा कोई चीज देखना नहीं है. एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.7 से भी अगर नीचे आता है तो दैट इज स्लाइटली बेरिश फॉर गोल्ड. और वही टाइम पे पेरोल्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ता है या घटता है. सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.7 ही आता है, जो मुझे लग रहा है 5.7 ही आएगा. तो हमको देखना है एक ही चीज, दैट इज पेरोल्स. सो मेजर फोकस आप पेरोल्स डेटा पे रखिए. पेरोल्स का डेटा अगर 1000 के ऊपर आता है तो गोल्ड विल रियली गो डाउन. इवन इफ 950 के ऊपर आता है गोल्ड विल गो डाउन. कल ऑलरेडी गोल्ड डाउन हो चुका है. 1000 के ऊपर आएगा तो और ज्यादा नीचे जाएगा, और 750 के नीचे आएगा तो बहुत जोर से गोल्ड शूटअप हो जाएगा. यही चीज आप आज के डेटा के लिए फैक्टर इन रखिए. राइट. सो ओवरऑल दिस इज कुणाल गोल्ड और सिल्वर को लेके. साइमल्टेनियसली क्रूड आप देखोगे तो यूएस इन्वेंट्री हैज गॉन अप, जिसके वजह से क्रूड ऑयल थोड़ा स्लिप हुआ था. However, $70 का बैरल के ऊपर है. How do you see crude moving? ओके, क्रूड मुझे लग रहा है सेल ऑन राइस की रणनीति अपनानी चाहिए. क्रूड में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट ऑयल प्राइसेस विल रन अवे राइट नाउ. सो फंडामेंटल्स ऑयल के बहुत तेज़ी के नज़र नहीं आ रहे. जो पेस में यूएस में केसेस बढ़ रहे हैं, सो यूएस में कोरोना के केसेस 1,40,000 केसेस, जो लास्ट हफ्ते में लास्ट फ्राइडे को यूएस के केसेस आते थे अराउंड 45,000 46,000. सडनली हम देख रहे हैं 1,01,000 1.5 लाख केसेस. सो ये ऑयल के लिए बैरिश है. तो मैं आज ऑयल 5200 के आसपास डेटा के टाइम अगर बढ़ता है तो मैं बेचूंगा. 5200 में मेरा टारगेट होगा 5090 और स्टॉप लॉस होगा 5250. ओके. और इसके अलावा अगर बेस मेटल्स देखेंगे तो क्लियरली आज के सेशन में बेस मेटल्स थोड़ा अप मूव दिखा रहे हैं. देयर इज सम बिट ऑफ सपोर्ट दैट इज कमिंग इन. व्हाट्स द सेंस? इफ पेरोल्स का डेटा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आता है तो बेस मेटल भी नीचे जाएगा, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा और टाइटनिंग एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी. चाइना में ऑलरेडी प्रॉब्लम चालू है, और इसके चलते हुए अगर यूएस में भी पेरोल्स बढ़ता है तो
बेस मेटल के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. Right. And Kunal, in terms of base metals, clearly in 2021, base metal prices have surged to multi-year record high levels as well. Now, with this, the anticipation is a lot of people are saying that tin and aluminium prices probably second half of 2021 may outperform karenge versus other base metals, which will then be followed by, say, nickel and lead. Do you think ऐसा हो सकता है? नहीं, बहुत कम लग रहा है, बिकॉज आप समझिए कॉपर की जो मार्केट है, कॉपर की मार्केट इज 25-26 मिलियन टन की मार्केट है. एल्यूमिनियम की मार्केट 60 मिलियन टन की मार्केट है. टिन की मार्केट एल्यूमिनियम की मार्केट से भी बड़ी है. सो ये सब मेटल्स को आउट परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट है. ऐसा नहीं होने वाला है कि कॉपर 2% अप है और एल्यूमिनियम 15% अप है. वेरी रेयर. सो ये कभी कोई प्लांट बंद हो गया या कोई बड़ी माइन बंद हो गई या चाइना ने एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन 25% डाउन कर दिया, तब ये सब हो सकता है, वरना ज्यादा पॉसिबल नहीं है. ये जो आप बोल रहे हो वो पॉसिबल कम है. Okay. Kunal, one question coming in. Any spread trade suggested in lead, zinc, or aluminium? I think Bhavna has asked me. Bhavna, I am not basically ज़्यादा मैंने स्टडी नहीं किया है, पर मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि अभी फिलहाल जो स्टील में चाइना में चल रहा है, तो स्टील का प्रोडक्शन चाइना में कम होने वाला है, तो जिंक की डिमांड कम होगी और सामने ये आगे जाके लेड की सीजनल डिमांड बढ़ेगी. Okay. तो वी आर इन द सिनारियो वेयर हमको देखना है कि जिंक थोड़ा ज़्यादा घट सकता है आगे जाके और लेड शायद अंडर परफॉर्म करे. बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन पेरोल्स डेटा. सो आपने मुझे मॉर्निंग को भी क्वेश्चन पूछा था, उसका मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूँ कि आप वेट कीजिए थोड़ा. मॉर्निंग इवनिंग को पेरोल्स रिपोर्ट आते हैं, उसके बाद मैं आपको ग्रुप में सबको डायरेक्शन दूंगा क्या करना चाहिए. Right. And overall, in terms of अगर आप natural gas, what's your view? नेचुरल गैस ऑलरेडी बहुत हमने ज़्यादा अपसाइड देखी है. थोड़ा करेक्ट हो सकता है. मेरा कोई स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है, सो मेरी तरफ से कोई आप लोग को कोई कॉल नहीं है नेचुरल गैस में. Right. So overall, that's the view coming in terms of commodities market. Thank you, participants. Thank you, Kunal, as well. Subscribe to our YouTube channel for in-depth interviews of India Inc. and press the bell icon so that you do not miss our updates.